So tomorrow or yesterday we studied about governance. We began with the sessions and we began with what is governance, why do we need governance, and what is their difference between governance and government. We also went through the syllabus which UPSC has defined for us. We saw what actually UPSC wants us to read and understand when we talk about the governance as a subject. What UPSC actually demands from us is all visible to us, and we can see that it is basically the the UPSC basically demands from us is what it demands from us is that we need to be aware citizens and we need to understand that what is happening around us, what decisions government is taking, whatever you read in the newspapers, whatever we go through while we skim our lives through government departments or paying the daily utility bills or transacting your money in the bank, whether you take your vehicle and ride it for a while on the national highways, you have to encounter the policies of the government and you have to observe them, that where do we see these policies happening. Further, we also need to see what are the steps which government is taking for vulnerable sections. Who are these vulnerable sections? Why should government take welfare measures for them? What are the other organizations besides government, besides the state as the prime actor, और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो एनजीओज हो, सिविल सोसाइटीज हो, ट्रस्ट्स हो, वक्फ बोर्ड हो, टेम्पल बोर्ड हो, ये कैसे काम करते हैं और इन सब के काम कैसे हमारी डेली लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं. These all things are there in the subject called governance. समझ में आ रही बात? हमने यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज भी देखे थे कल और हमने ये भी देखा था दैट यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर्स में, मेंस में कुछ थीम्स को सिलेक्ट किया हुआ है. उन्हीं थीम्स के बेसिस पे ये चीज होती है दैट इन्हीं थीम्स के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा. ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, e-governance, social sector, NGOs, self-help groups, and the other institutions which are working in the social sector. All of these are the prime themes which UPSC asks questions on. We also saw yesterday कि around 15 से 45 नंबर हमारे पेपर में आ सकते हैं. किस पेपर से? इस गवर्नेंस के सेक्शन से. इसको हमारा टारगेट है 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म करने का. और आज का क्लास जो हमारा होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होगा और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेडन हमारा आज का चैप्टर होने वाला है. मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आप सब से ये चाहता हूँ कि आप सब लोग एक काम करें, अपनी नोटबुक्स जिसने नहीं निकाली है अभी तक, अपनी नोटबुक्स निकालें और अपनी नोटबुक्स और पेन के साथ बैठ के आप स्टार्ट मेकिंग नोट्स. कल के लेक्चर में हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस in various sectors, why government needs public policy, why do we define public policy, why do we make public policy, what types of the policies are there with the government of India, what are redistributive, recapitalization policies, what are the main aims of policies. I gave you examples of Swachh Bharat mission, I gave you multiple examples, whether they are for climate change, whether they are for renewable energy, whether they are for the energy shift or the just transition. We also discussed some aspects of COP29 also.
तो ये सारी चीज़ें हमने कल के पेपर में, कल के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी कि पॉलिसी हम एक्चुअल में क्यों बनाते हैं, लिबरलिज्म क्या था, नियो लिबरलिज्म आने के बाद, ये जो नया शिफ्ट है टुवर्ड्स नियो लिबरल पैराडाइम, हाउ दिस इज हैपनिंग एंड हाउ this is impacting the role of state in our current day-to-day lives, how state is rolling back and how state is becoming now a facilitator from a controller to a regulator and now a facilitator of the market economy. The role of the states in the neoliberal paradigm has totally changed. ठीक है. We also read about नीति आयोग. नीति आयोग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, नीति आयोग का पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में कर ली थी. अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, कल के सेशन में कोई क्वेश्चन है जो पूछना है, वो अभी मैं आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. आई वांट यू टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर वी प्रोसीड विद टुडेज सेशन. आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस and the issues and challenges with the developmental process, how we build plans, how we implement plans, and then how we work with plans. So before I begin with the session, before I begin with my discussion, I want all of you to at least react with a thumbs up or drop me a message in the chat box that we are ready for the session. Great. There are people who are joining. Yes. Now I want all of you to be active and show me your reactions whenever you hit a thumbs up, whenever you actually understand the concept. When I ask this question that do you understand this concept, hit the thumbs up, and if you have any doubt, raise your hand and ask the doubt. If you cannot unmute yourself, just ask the doubts in chat box. You can type it and I'll read it out and then I'll answer your doubts. Now shall we begin with the lecture? Okay. So गवर्नेंस, मैंने आपको कल भी बोला था, गवर्नेंस एक ऐसा चैप्टर है, गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें डेली एनकाउंटर करने को मिलता है. ये सब्जेक्ट हम सब ये जानते हैं दैट स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल क्या है? वो रोल है डेवलपमेंट. But have you heard of this thing that there are two different things? One is growth and another is development. आप सब लोगों को पता है growth and development are two different things. Welcome everyone. Can anyone here define me what is the main difference between growth and development? Sir, if we are going to talk about the development, we are only focusing on development irrespective on what are the impacts of on our environment. But in growth, we are taking into consideration simultaneously, for example, environmental pollution also. Sir, for example, anyone has built a factory, but he is not focusing towards the environment, towards the climate change. That is development. But if we will take into the consideration, we will see the impact on the environment, then it is growth. Well said, but I believe जो आपने growth का definition दिया, that is the definition of development, and development का definition was the definition of growth. Good, Shabina. Now understanding this thing, just simply, growth is when you grow in terms of economy.
आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपको कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रोडक्शन, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अब ये पैसा करप्शन का पैसा है तो यू आर ग्रोइंग, ये पैसा आपने ऑनेस्टी के साथ कमाया है, आप तब भी ग्रो कर रहे हो। बट वहीं पे व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट होलिस्टिक ग्रोथ। Holistic growth means you have mental peace also, you have physical fitness also, you are financially sound also, your living standard is also good, your health, life expectancy is also improving. Everything holistically, when we talk about the growth, holistic growth, that is development. But when we talk about growth only, it is just the economic factors, it is just the quantitative measure. Those who have read economics, they might be able to understand the process, that this is just quantitative measure and this development is a qualitative measure. Why do we need development, and why does the state take processes, and why is state having this obligation that it has to take steps for the development of the nation, for the development of its population, for the development of its demography, for skill development, for employment, for standard of living? वैक्सीनेशन क्यों कराती है गवर्नमेंट? बच्चों का मिशन इंद्रधनुष क्यों चलाया? मिड डे मील स्कीम क्यों दी जा रही है? ठीक है, पेंशन का पैसा क्यों दिया जा रहा है? जो विडोज हैं उनको पेंशन क्यों मिलती है? सरकारी मुलाजिम को नौकरी से छुट्टी क्यों मिलती है? मैटरनिटी बेनिफिट लीव्स क्यों मिलती है? वाई? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। दिस इज, ये बस ऐसे ही नहीं है आपको मैटरनिटी लीव मिल रही है, क्यों मिल रही है? इट इज फॉर डेवलपमेंट, इट इज फॉर व्हाट? फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द डेमोग्राफी। एंड जितनी आपकी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, जितनी आपकी पॉपुलेशन अच्छी होगी, जितना आपका स्टेट अच्छा होगा, उतना आप प्रॉस्पर करोगे। चेक आउट भूटान, द ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ भूटान इज वेरी हाई। Check out the Nordic countries, their life balance is very good. But वहीं पे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, LMICs, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इस पे एक एडिटोरियल आया था। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, what they are facing, how much problems they are facing। ठीक है, currently we are going through food inflation, 11% food inflation. So how state can enter this space of developmental processes, and why does state need development? Why do we need development? And ये तो मैंने आपको बता दिया, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, तभी जाके हम डेवलप कर पाएंगे। जब हमारी डेमोग्राफी, हमारी पॉपुलेशन अच्छी होगी, तभी हमारा नेशन अच्छा होगा, हम ग्रोथ कर पाएंगे। एक ही फैक्टर पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? देयर द रिचेस will become richer, there will be no equality, there will be no human development. So this developmental process in itself is of how many types? It has multi-dimensional aspects. It is human development, it is political development, economic development, social growth, sustainable development. So how do we define development? Just write it down. It is the holistic process which is aimed at improving the quality of life, expanding choices and empowering individuals. What is development? Anyone? What is development? It is improving the quality of life, expanding the choices and empowering the individuals. What are the key aspects of development? That it goes beyond the growth. Economic growth से आगे जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के एडिशन में क्या करते हैं हम? ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
and in the process of this development, in order to make ourselves developed, we have Amartya Sen's perspective. Amartya Sen gave the capability development approach, ठीक है, or the capacity development approach or the capacity building approach. Capability development approach talks about that what we can do is we can focus on the well-being of people once we ensure कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी भी हमारी जनता है, इन सब के पास स्किल्स हैं, इन सब के पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि ये अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, ये अपनी पॉवर्टी, अपने हंगर, अपनी इनकम, अपने खर्चे, चाहे वो हेल्थ एक्सपेंडिचर हो या वो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर हो, अपनी एम्प्लॉयमेंट, जितने भी इनके घर में एज पॉपुलेशन है, सबका ध्यान खुद रख सके. हम अपनी पॉपुलेशन को इतना कैपेबल बनाएं कि जहां पे हमारी पॉपुलेशन इस लेवल पे पहुंच जाए दैट ये अपने कॉन्स्ट्रेंट्स खुद रिमूव कर दें. ठीक है, we need to expand the human capabilities and remove the constraints that limit the opportunities. Understood? समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? Anyone who wants to ask anything? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, किसी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया था और क्यों आया था? एनीवन knowing about the SDG goals? Have you read about the SDG goals? These SDG goals, how many SDG goals do we have? We're having 17. 17 SDG goals. And why do we have these goals? Sustainable development goals. Again, we are focusing on what? Development. ठीक है? So when we talk about development, what we need to do is we need to focus on what? Is the screen visible to everyone? Huh? Is my screen visible to everyone? Yes, sir, visible. Okay, good. Now, understand this thing. What are the dimensions of development? I said it is human development. Like human development index, कौन निकालता है? Anyone? कौन निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? बताओ. UNDP. It focuses on what? Life expectancy, education and per capita income. Economic development, we try to derive the statistics of economy, that is GDP, infrastructural growth, industrialization. India का GDP has increased from $30 billion of 1950s to multi-trillion economy. We are touching 3 trillions. ठीक है? That is how India is going to prosper in the dimensions of development. Social development, we introduced programs like Beti Bachao, Beti Padhao, gender equality. Political development, अभी रिसेंटली किसी को पता है, अभी 2024 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बताओ, वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर. याद है 2023 में ये बिल आया था, किसी ने पढ़ी है ये बिल? व्हाट इज द प्राइम मोस्ट, जो इसका मेन, जिसके लिए ये बिल लाई गई है?
कहाँ Main रिजर्वेशन देगा? objective. यस प्लीज। So हाँ जी, 33% reservation. ओके। 33% रिजर्वेशन वेयर? Um, either in Lok Sabha or in Parliament, sir, I don't remember. ठीक है, गुड। I think वन in बाय the थर्ड Lok सीट्स। Sabha. गुड गुड गुड। Shabina, you can unmute yourself, and anyone here, you can unmute yourself and speak. Why do I want you to speak? There is a particular reason behind it. Because अगर हम बात नहीं करेंगे, मैंने कल भी बोला था, अगर हम सोचेंगे नहीं तो बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे नहीं तो आंसर नहीं हो पाएंगे, आंसर नहीं लिख पाएंगे, आंसर नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आए तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसीलिए सोचना ज़रूरी है, बट सोचने के बाद बोलना ज़रूरी है। बोलेंगे उसके बाद लिखेंगे। आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है पहले बोलना, डायरेक्ट आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है। और ये मेंस का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में है, पता कर लेना। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, these are some of the aspects and dimensions of development. However, this developmental process has faced some main challenges. Like हमने सबसे पहला initiative जो लिया था, that was land reforms. In order to implement Article 39B and 39C, we introduced the Land Reforms Acts, and the first act in such a process was introduced by the state of Bihar. The state of Bihar introduced the Land Reforms Act in the Bihar State Assembly, and what it actually aimed at was redistribution of land, because the concentration of land was with whom? Zamindars, Jagirdars. Therefore Land Reforms Act आया. But there was a challenge to this first constitutional amendment act, which allowed for, and then we had to amend the constitution with first constitutional amendment act, and then came the series of amendments. And when Mr. Jawaharlal Nehru introduced the first constitutional amendment act in the Parliament of India, he said that from the past 8 to 9 months, it is hard for us to believe that we are introducing amendments to the same constitution which we made by our own hands. Understood? So, this land reforms which we brought was first brought for what? It was brought to ensure that people have enough resources, and the only resource at that point of time, because 60% of the population, more than 60% of the population was dependent on agriculture. So the first initiative which Government of India took was providing land to everyone, removing the concentration of wealth and distributing the resources according to Article 39B and C, which is the directive principle of state policy. Therefore, this land distribution was the first step in order to ensure development. But problem क्या हुआ? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स आ तो गए, बट इतने चैलेंज हुए कि 1951 से लेके 1973 तक कंटिन्यूअसली गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, इतने सारे केसेस आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे. स्टिल you can see that there are benami transactions. The proceeds of corruption are utilized to buy this land, and this land reforms, the implementation of this land reform measure was
that much ineffective and flawed that it led to the famous or infamous movement which is नक्सलबारी movement. बताओ नक्सलबारी मूवमेंट क्यों हुआ था और हुआ नक्सलाइट्स एंड व्हाट इज LWE. यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी सब आएगा. जब मेरे पास पढ़ोगे तो सब आएगा, सब यहीं पे पढ़ाया जाएगा. ठीक है. अब बताओ नक्सलबारी मूवमेंट कहाँ आई थी और क्यों आई थी. बताओ वेस्ट बंगाल नक्सलबारी रीजन, flawed land reforms, flawed implementation of the land reforms. West Bengal government introduced this act for land redistribution, but वहाँ के जो peasants थे, वहाँ के जो tribal थे, उन्होंने start किया movement against the state agencies. वहीं पे you can see in the past we have seen पिछले 2 महीने से, जब भी मैं पिछले 2 महीने में मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, इन विच वी डिस्कस द नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, इन विच वी हैव सीन दैट द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, they claim that they are paying for the survival and for the explosion of population in the northern states. What they say is कि हमारे पैसे पे चल रहा है नॉर्दर्न स्टेट्स, बिहार एंड यूपी, बीमारू स्टेट्स. Why do they say so? Because there is uneven development. We have seen Bihar and UP having the worst numbers, having the worst indices in terms of education, in terms of nutrition, poverty, hunger, maternal mortality rates, infant mortality rates. They are severely, last time हमने देखा huge tragedy हुई बिहार में, 28 people died. मुजफ्फरपुर में we already saw that people and children, hundreds of children died because of the encephalitis. Therefore, there is inter-regional disparities. Southern states have taken measures, enough measures, to implement the economic policies and demographic policies and control their population. Until this date, there are issues in federalism also and developmental issues also. In Bihar, we have seen that every year we witness a flood. Every year there is a flood in Bihar. We have seen northeastern states have connectivity problems. We witness that India allocates only 2.9% of the GDP to education, which is far below 6%, which is the actually required and recommended number. 6% GDP का जाना चाहिए एजुकेशन में, बट वहीं पे हम कितना एजुकेशन में दे रहे हैं, 2.9%. और डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ता जा रहा है. That is how development happens. We need to cut down our defense expenditures in order to ensure developmental processes, and there has been debate. या ये क्वेश्चन मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, इंडिया जो है आज की डेट में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं हम स्पेस में, स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट से. क्वेश्चन आप सबके लिए है कि आज की डेट में अगर आपको पता हो, हम लोग बहुत सारा पैसा स्पेस के सेक्टर में लगा रहे हैं, है ना. मिशन चंद्रयान, अभी हमने आदित्य L1 लॉन्च किया है, अभी हम मॉस्को के साथ एक और सैटेलाइट लॉन्च किए हैं लास्ट महीने. एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग आवर ओन इंटरनेशनल और आवर ओन इंडिया स्पेस स्टेशन, because China and USA is already having that. Now, understanding these prospects, don't you think that India should better use its resources and use its money for the social sector than going into the space? क्या लगता है आप सब लोगों को, क्या इंडिया को जाना चाहिए स्पेस में, या फिर इंडिया को पहले अपना सोशल सेक्टर इंप्रूव करना चाहिए, गरीबी मिटानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, स्टंटिंग जो कि 32% पे है, वेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन,
लो बर्थ वेट, इसको ख़त्म करना चाहिए, हंगर को ख़त्म करना चाहिए, जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, इसको ख़त्म करना चाहिए, बाद में स्पेस में जाना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन? So India should focus on both of these things. First, India is now becoming the global power. India is trying to becoming the global power due to the Chinese influence, and also the and it's also the power voice of the global South. India is considered that. Hmm. So at the same time, India should focus on the nutritional, like regional disparities, education and health. Hmm. ठीक है, the balanced answer which everyone is expecting, that it should be a diplomatic answer where you should focus on both the things, space and social sector both, है ना? And Yes, at sir. the same time we should also see that it's not only the government which has the responsibility, but also it is on the people of India that they need to take care of their brothers and sisters of this land. Next, there are other issues also in terms of challenges to development. We have poverty, we have lack of basic amenities. As per the 2011 census, nearly 7% of India's population is which live in rural areas. (46% of the urban area population is living in slums, and 46% of this population have access to drinking water, but that drinking water is not safe. In order to understand the dimensions of poverty, Global Multidimensional Poverty Index, it highlights that around 22.8 crore people, or 16.4% of the people of India's population, are poor, and they are multidimensionally poor. India's unemployment in 2023 was 8%, has touched the figure of 8%. India has income inequality, where the Oxfam report 2023, which was titled as Survival of Richest, ये पॉइंट्स लिख के रखना, दोबारा नहीं मिलेंगे. पीपीटी जो मिलेगी भी आपको, उस पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जस्ट पीपीटी मिलेगी. ठीक है. The statistics which was mentioned by this Oxfam report titled as Survival of the Richest showed that India में जो top 5% लोग हैं, they own more than 60% of the country's wealth. There you go. The report was named as Survival of the Richest report. We have high population reserve. 2023 में India already surpassed China in the population. We have underutilization of land resources, natural resources. Our administration has deeply entrenched corruption. Poor implementation of government schemes is there, and there is lack of empathy for poorer sections of the society. ठीक है. There are bureaucratic delays, administrative challenges like corruption, inefficiency, implementation of the government schemes. We are lacking on effective utilization of resources. For example, मैं आपको simplest example दूंगा. अभी आज की डेट में हमारी बात चल रही है, और अभी recently last month, not last month but in the month of November only, India gave a notice or a proposal
to Pakistan for the revival of Indus Water Treaty. Why? This proposal mentions that India has to utilize the resources of the 6 rivers, and the problem in that is जब भी हम चेनाब पे, झेलम पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, whether that is the Kishan Ganga project or the lateral hydro power project, Pakistan goes to challenge it at the international court or the arbitration councils. Further, we recently found lithium reserves. We have monazite reserves in the sands of our coastal regions, but still we do not have enough resources, enough advancement to utilize all of these resources. That is the prime challenge in our developmental process. Some key initiatives which Government of India has taken in order to ensure development, like प्रधान मंत्री आवास योजना. ये आवास योजना कब लॉन्च की गई थी? 2022 में. इसका एम क्या है? 1.2 करोड़ हाउसेस बनाने हैं और ये स्कीम ऑलरेडी चल रही है. We have Skill India Mission, which aims to train 40 crore people by 2022. We have National Health Mission, which aims to provide accessible health care through Ayushman Bharat scheme, free health coverage, health ID, health stack, digitization of healthcare. किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, पढ़ने में? Anyone having any issues? You can just ask me. Okay. In India, what are the prospects of sustainable development? The prospects of sustainable development in India, we have taken key initiatives, like we have integrated the policy framework of sustainable development and national action plan on the climate change. We have an integrated approach for these two things, where we try to achieve the two things, that is sustainable development and climate goals. India has already achieved the NDCs which it promised under the Paris Agreement. Our renewable energy is the prime focus, in which मैंने कल भी आपको बताया था, PM मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर योजना, solarization of all the agricultural pumps or the installation of solar power plants. These are some of the key initiatives which Government of India has taken in terms of sustainable development in India. समझ में आई बात? वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हर एक चीज पे आज की डेट में पॉलिसीज बन चुकी है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज इश्यूज सेपरेटली इन अपकमिंग स्लाइड्स. वाटर कंजर्वेशन पे क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, लाइक लास्ट टाइम आपको याद होगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं. सोशल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, मिड डे मील स्कीम चलता है, पता है आप सब लोगों को, गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना दिया जाता है. इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों को और बच्चे हेल्दी हो जाएंगे, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो स्कूल्स में है एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. इसके बाद वी हैव स्कीम्स लाइक
MG Narega, which provides 100 days of guaranteed wage employment, which was very much beneficial. Which was very much beneficial to what? Just a moment. People are joining at this moment. Okay. Okay. I believe there is no one to join now. Nice. We have MG Narega, which promotes rural poverty, reduces rural poverty, and it also promotes the economic security. However, Manrega also is facing its own challenges, like delay in payments, delay and corruption in passing of the projects, limited skill development. So these are the sectors of social development where we need to understand that हमने steps तो लिए हुए हैं, but everything has its own cause and consequences. See, सबसे पहली चीज ये समझ लेना, यहाँ पे हम गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस, और गवर्नेंस में मैं आपको स्कीम्स, एक एक स्कीम, उसके चैलेंजेस, उसके इश्यूज, उसके पैराडाइम्स सारे मिलके नहीं बताऊंगा. ये स्कीम्स को अलग से कवर किया जाएगा एक लेक्चर में, जो शायद मैं ले लूं कल को. करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जब लेने होंगे आपके, तब अगर शायद मैंने ले लिए वो लेक्चर्स, तो आपको ये जो स्कीम्स है अलग से पढ़ाई जाएंगी एक एक करके, कि इसका अचीवमेंट क्या क्या हुआ और इस स्कीम से क्या क्या फायदा हुआ, क्या अचीव किया गया इस स्कीम के बाद, और इसके गोल्स क्या क्या थे. ठीक है, तो यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द एनालिसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड व्हाट आर द सोशल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स व्हिच वी हैव टेकन टिल डेट. What do we actually need when we talk about development is the inclusive development. सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका what विकास. विकास. हाँ, सबका साथ और सबका विकास. विकास बहुत बड़ा हो चुका है आज. Sir, can we relate this with the Vasudeva Kutumbakam? How come? Which are you asking about to relate Vasudeva Kutumbakam to what? Inclusive development? Yes, sir, inclusive development, because in that we are taking the environment into consideration as a big factor, because we consider this earth as a single unit, globe as a single unit. Okay, Vasudeva Kutumbakam basically means, it translates into that the whole world is a family. So it basically talks about the humanity. Vasudeva Kutumbakam talks about the humanity aspect. So when we talk of humanity, that in itself means sabka saath, sabka vikas. Basically, inclusive development is a slightly different concept than Vasudeva Kutumbakam. Inclusive development, we are focused, narrowly focused on the development of humans, that too who are living in our country. We are developing our citizens and to some extent the residents who are in our country. Bas. When we talk about Vasudeva Kutumbakam, it talks about what? It means welfare of whole humanity on the surface of earth. Understood? Inclusive development. Yes sir, it's a pretty clear. इसका कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है कि हमें गरीबों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को, चाहे जब ये J.S. मिल हमारे एक ऑथर रहे हैं लिबरलिज्म के, और वो बोलते हैं दैट एवरी पर्सन मस्ट बी हर्ड, एंड इवन इफ, अगर एक इंसान चाहे कितना भी गलत हो और वो गलत ही बोल रहा हो, तब भी उसके पास ये राइट है कि वो गलत बोले, एंड आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर द राइट दैट ही हैज टू स्पीक इट, इवन इफ ही इज द सिंगल वन पर्सन टू हैव दैट थॉट.
सिमिलरली इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सेम चीज है, चाहे वो कितना ही दूर रह रहा हो, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा रीजन के किसी भी जंगल के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के एरिया में कहीं पे भी रह रहा हो, वो केरला के कन्याकुमारी में रह रहा हो, वो अंडमान में सेंटिनरी क्यों ना हो, हर एक इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब ये कैसे होगा? तो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए अलग से प्रोविजंस लेके आएंगे, हम शेड्यूल ट्राइब के लिए 5th 6th शेड्यूल लेके आएंगे, हम शेड्यूल कास्ट के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लेके आएंगे, हम इनके लिए अलग से स्कीम्स लेके आएंगे। वी विल बैन द मैनुअल स्कैवेंजिंग, वी विल इंट्रोड्यूस वुमेन रिजर्वेशन बिल फॉर The वुमेन्स। measures that will protect the human trafficking which is going on, sir. Yes, yes, we will protect and prevent human trafficking. आज के पेपर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला था बताओ? जो आज के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आज 13 नवंबर हो गई। संजीव खन्ना सर, खन्ना 51st 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना? तो उन्होंने यही चीज बोली थी जो आपने बोली अभी, एंड दे हाईलाइटेड, ही हाईलाइटेड दिस थिंग कि हमारे यहाँ आज तक सेक्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे क्यों नहीं काम किया जा रहा है, क्यों नहीं वो गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। Last time also, Yes, sir. But the major issue when we are talking about this human trafficking, every year when we look at the facts and figures, we see 2 or 3% of the women throughout the world are kind of, we don't find them, we don't find their identity. They kind of escape, ghost, और हम ऐसा कह सकते हैं कि they वो just गायब हो ghost, जाती है. हाँ, they just Yeah, ghost. yeah, that's what I mean. True. What's the reason and how to tackle that, sir? When we See, talk of inclusive development, we talk of all these provisions in our constitution, and yes, in ground, why this disparity, why this difference is always there? Is this on behalf of the bureaucrats or the politicians done intentionally? These things are there for their betterment, for their scope of politics. What it is actually, sir? Is it the failure of people? Is it the failure of the societies? Is it the failure of administrative machineries? truly, as I said, that it is basically a cross-border crime. If you need to, if you actually try to understand it, Yeah, this, exactly, sir. हाँ, Yes, it's a sir. cross-border crime, and there are multiple agencies, rackets, sex rackets, which are involved into this. It basically comes, जब हम इस क्राइम को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक डोमेन है, टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स Sir, OCGs में आता internal, है। is it more internal security issue or collective security issue? मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी में जब हम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स को पढ़ते टाइम आपको ये समझ में आएगा कि 2-3 चीज़ें हैं जहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो सिंडिकेट चल रहा है, किन लोगों का, क्रिमिनल्स का, इंटरनेशनल लेवल पे, ये उनके साथ मिलके ये क्राइम्स होते हैं। एंड देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू इट, दैट देयर इज साइबर वर्ल्ड आल्सो, डार्क वेब एंड डीप वेब। सो ये 3 चीजें आपस में मिलके इस क्राइम को, ऐसे क्राइम्स को, चाहे वो हवाला हो, वो गोल्ड की स्मगलिंग हो, वो ड्रग्स हो, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो, ये सारे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, इनको बहुत ही ज्यादा टीडियस और डिफिकल्ट बनाते हैं फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज टू टैकल दीज। सो हम डोमेस्टिक लेवल पे क्या कर सकते हैं? हम डोमेस्टिक लेवल पे इस OCG को खत्म कर सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे। बट आपको पता है अभी रिसेंटली बिश्नोई गैंग, आपने पढ़ा उसके बारे में? Right, sir. है ना? तो दैट गैंग इज जस्ट एक्टिव, अभी वो डायरेक्ट थ्रेट्स दे रहे हैं, but still you are not able to tap those criminals. So that's what my point is. Is it on Yes, behalf it of is government? failure. It is Because failure. when
Exactly, sir. Sir, but as a bureaucrat, how can we build our opinion? We cannot make such a bold statements. Is the failure of the government? How to tackle this and how to answer this in such a good streamlined way where it might seem decent, might seem a decent answer, sir. That's what my problem is because I sometimes tend to make these awkward conclusions out of many things, sir. That's my primary concern of asking this. Very well said. Everybody here might have faced the same issue कि हम शुगर कोट करके चीज़ों को कैसे रखें, है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के चमचे नहीं बनने वाले हो, आप एक ब्यूरोक्रेट हो। ब्यूरोक्रेट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले होनी चाहिए वो है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो अपने आंसर में, आप उसके साथ फैक्ट लिखो, आपको कोई नहीं रोकेगा। वेदर इट इज़ दिस फेलियर ऑफ द स्टेट, मैंने यहाँ पे क्या बोला, दैट द फेलियर ऑफ द स्टेट in implementing the land reforms, we still are facing the brunt. There is failure of the state in public distribution system, that there are subsidy leakages. 28% subsidy आज भी लीक होती है. There is failure of the state. It is failure of the state, clear failure. Don't try to hesitate to not mention it, but yes, understand it. सबसे पहली चीज, अगर हम ये बोल रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 57% ऑफ द पुअर पीपल इनको टैकल करता है, इनके घर खाना पहुंचाता है, अदरवाइज ये लोग भूखे मर जाएंगे। वहीं पे हमने ये भी बोला कि 28% सब्सिडी जो है वो लीक हो रही है। सो देयर आर प्रोज ऑल्सो, देयर आर कॉन्स ऑल्सो। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इम्प्रोवाइज, बस। Yes, sir. सिंपल, That's the yeah, yes, sir. How, बस how यही करना है, ऐसे ही करना है। ये जो सेक्स, we need to make that balanced conclusion, sir. एग्जैक्टली मैंने 3 पॉइंट्स में दिखाया आपको कि अगर आप एक डेटा लिख रहे हो पॉजिटिव, दूसरा डेटा लिख रहे हो नेगेटिव, तीसरा आपको पॉइंट लिखना है बैलेंस्ड। खत्म। मैथमेटिकल है पूरा आंसर राइटिंग, दिस इज मैथमेटिकल, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। और Yes, sir, I get it, sir. हाँ, आपने अगर एक पॉइंट लिखा कि 3% ऑफ द वुमेन दे आर गोस्टेड और दे जस्ट गोस्ट अवे एवरी ईयर एंड नो वन फाइंड्स देयर आइडेंटिटी एवर, है ना? Yes, लिखो sir. एग्जाम्पल, बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेक्स रैकेट है वहां पे। वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लिखो, दिल्ली का एग्जाम्पल लिखो, इतने सारे एग्जाम्पल्स, मुंबई का एग्जाम्पल लिखो, है एग्जाम्पल्स हमारे पास। व्हेन वी रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, यस देयर इज प्रॉब्लम, देन ओनली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। If we do not recognize, And this issue has been a very local thing to us now because the kind of upsurge in this sex rackets, we have seen this in Kashmir nowadays as well. So yes, I it guess it is. is of more relevance to us from KS point of view. Yeah, it is. Truly it is. We need to understand it. ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमें स्टेप्स लेने हैं हर एक चीज के ऊपर। marginalized groups, vulnerable groups, women, scheduled caste, scheduled tribes, minority communities, transgenders, bisexuals, those who are basically differently abled, everybody and every citizen and every resident of the country has to be in the lens of development. Everyone has to have the benefits of development. That is the meaning of inclusive development. क्योंकि हमारे यहाँ आपको वो इंसान भी मिलेगा जो दिन का 10 रुपया भी नहीं खर्च करता, और आपको वो भी इंसान मिलेगा जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है एक महीने के अंदर। ठीक है, दैट टू ऑन अ लैविश वेडिंग, है ना? Yes, sir. Now how can we proceed further and what should be the way forward to address the developmental challenges? We need to build the human capital, because till date we have 49% of our population, of our graduates, sorry, they lack the market ready skills or market demanded skills. So where is our human capital? We have a demographic dividend window
till 2045 और आई गेस 2055 हमारे पास ये विंडो है जहां पे वी कैन टैप आर ह्यूमन डेमोग्राफी, वी कैन टैप आर ह्यूमन कैपिटल एंड वी कैन यूटिलाइज देम. Therefore we need to focus on education, health, skill development. इसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई है. आपको बस इतना याद रखना है कि स्कीम्स का एग्जाम्पल यहाँ पे देना है. रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना है. 15th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, दे हैव वेरी वेल एड्रेस्ड दिस इशू. और फिस्कल फेडरलिज्म, जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है हमारे यहाँ, इसको करेक्ट फॉर्मूला के साथ 17th फाइनेंस कमीशन को रेकमेंड करना चाहिए. देयर आर न्यू टर्म्स ऑफ कंडीशंस और टर्म्स ऑफ रेफरेंस which are underway in the 16th Finance Commission about disaster resilience. Population कितना कंट्रोल हुआ है, फर्टिलिटी कितनी कंट्रोल हुई है, ये सब चीजें 16th फाइनेंस कमीशन अच्छे से कंसिडर कर रहा है बिफोर रिकमेंडिंग द डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस. दैट इज हाउ वी कैन बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट. अंडरस्टूड? We need to strengthen the governance. How we can strengthen governance? अभी यहाँ पे देखना, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं यही आगे डिस्कशन में आने वाले हैं. हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं वो आगे आएंगे. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में क्या मेजर्स लिए गए हैं, आरटीआई को लेके क्या. हाँ हाँ. So I have a point to make. Can I? Sir, when we talk of these minority groups, for example, you just mentioned fifth and sixth schedule, which was a kind of uplifting provision for the minorities of the specific states in India. And when we talk of local government from the federalism point of view, sir, we have given these states as a special privilege to govern themselves in the form of local bodies, which we call as local government, which is nowadays prevalent in almost all the 28 or 29 states which are there. But when we talk of this transparency, sir, before the inception of local government, we have seen everything was going in the behind the curtains, behind the doors. We have seen the systems which were opaque. We were not we were not aware about what kind of funds are coming from the center and what kind of utilization is made by these local bodies for us. But at the same time, when we are bringing local government, when we are bringing local panchayats, these institutions for us as a kind of security to uplift people, this at the same time has caused those negative repercussions for us. For example, when we talk of these local bodies, we have seen the increased political participation. I guess you agree, sir, with this. We have seen the mass increase in the political participation of the people, but at the same time, we have seen the raise the level of the level in this increase, sir. Hello. I guess you have lost your connection. Now, proceeding with the answer which the student was posing about, इन्होंने बोला that politicization, local governance, fifth schedule, sixth schedule, and special privileges to these regions. Basically, understanding the concept, politicization is different. Local governance, sixth schedule and fifth schedule, and special privileges to some रीजन्स लाइक ट्राइबल रीजन्स में हमें डेवलपमेंटल प्रोसेस को वैसे चलाना होगा कि वो वहाँ के लोकल कस्टम्स को, लोकल कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ पे जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है उनको हैम्पर ना करे. दैट इज वन थिंग. दैट इज वेयर वी नीड टू टेक डेवलपमेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ. सिक्स शेड्यूल की डिमांड की जा रही है किसी स्टेट के द्वारा, फिफ्थ शेड्यूल की डिमांड की जा रही है किसी रीजन के द्वारा, किसी ट्राइबल ग्रुप के द्वारा. लद्दाख डिमांड कर रहा है. तो क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि लद्दाख की नीड्स डिफरेंट है फ्रॉम द एंटायर इंडिया.
लद्दाख की नीड क्या है? वहां के ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना, वहां जो टूरिस्ट आते हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करना। लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट आने चाहिए लद्दाख के अंदर। वहीं पे ट्राइबल ग्रुप्स जो अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम में रहते हैं, उनके लिए अलग प्रोविजंस होने चाहिए, बिकॉज वो लोग आज भी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं। सो देयरफॉर लोकल गवर्नेंस को लेके अगर आप बात करो तो डेवलपमेंटल प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। पॉलिटिसाइजेशन की बात करें या पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें, तो जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज होंगे लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस, उतना ही पॉलिटिसाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस पार्टिसिपेशन of local people in the politics will increase, and eventually this all will bring down corruption. This all will ensure better implementation of the policies, because see corruption इंसान क्यों करता है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप कल को गए एक गवर्नमेंट ऑफिस में और आपने बोला सर मुझे ना ये वाला लोन चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे मुद्रा लोन चाहिए। अगर आपको मुद्रा लोन के बारे में कुछ नहीं पता है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज बीन इनफ ट्रेन्ड कि उसको सारे प्रोविजंस पता है। वो आपको बता देगा कि मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन दिला दूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। आपने अपने घर के लिए एक पीएम आवास योजना के अंदर अप्लाई करना है। आपने पीएम आवास योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए चले गए, वहां पे जो वीएलडब्ल्यू बैठा था, वहां पे जो बीडीओ बैठा था, जो उन चीजों को अप्रूव करने वाला है, उसके असिस्टेंट ने आपसे बोल दिया कि आप 10,000 रुपए पहले हमें दे दो, उसके बाद आपको 30,000, 40,000, 50,000 रुपए मिलेंगे पीएम आवास योजना के अंदर। वाई इज दिस करप्शन देयर? बिकॉज द पीपल आर लेस अवेयर। जितने ज्यादा लोकल लेवल पे गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे, जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उतना ही बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होगा। Understood? We have a case study of केरला का डेवलपमेंटल मॉडल, बट मैं चाहता हूं हम ये केस स्टडी बाद में डिस्कस करें, क्योंकि केरला का जो ये मॉडल है ये बस इतना नहीं है कि यहाँ का एचडीआई अच्छा है, यहाँ की पॉवर्टी कम है, यहाँ की लिटरेसी रेट अच्छी है। दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन केरला। फिस्कल फेडरलिज्म को लेके, ग्रोथ को लेके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेके, हर एक सेक्टर में केरला इज डूइंग गुड। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू केरलाज डेवलपमेंटल मॉडल। ये बस ये 3 एस्पेक्ट्स नहीं है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे केरला का जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, प्लस हम गुजरात का भी डेवलपमेंटल मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद we will also see the developmental model which is established in the northeastern states। ठीक है, वेस्ट का भी देखेंगे और रशिया का भी देखेंगे और चाइना का भी देखेंगे। तो ये डेवलपमेंटल मॉडल्स का एनालिसिस हम लास्ट में करने वाले हैं, अभी इसके लिए आपको वेट करना होगा। दिस इज जस्ट अ समरी, जस्ट लीव इट। नाउ वी विल डिस्कस द सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर रोल इन डेवलपमेंट। व्हाट आर दीज सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस? ये मैंने आपको कल भी बताया था। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, ट्रस्ट्स है, सोसाइटीज हैं, है ना। हमारे पास वक्फ बोर्ड है जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट वाला काम। एनजीओ कोई काम कर रहा है पॉवर्टी रिडक्शन पे, एनजीओ कोई काम कर रहा है एग्रीकल्चर अवेयरनेस पे, पॉलिटिकल अवेयरनेस पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। कोई एनजीओ है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रही है? हमारा सोशल कैपिटल बना रही है। देयरफॉर देयर इज अ प्रोसेस पूरा, जहां पे सिटीजंस, डायलॉग, डिबेट, इलेक्शन, कंसेंसस, उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। बट दिस गवर्नमेंट एंटायरली इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिविल सोसाइटी।
ठीक है, पब्लिक पॉलिसी कौन बनाता है, पब्लिक पॉलिसी पार्टिसिपेशन में कितने लोग हैं, ठीक है. Am I audible, and is there anyone who can confirm that the voice is clear and my screen is visible to all of you? Yes, sir, it is clear. Okay. Thank you. Understood. So there are other social capital organizations also which we have to deal with in governance. According to second ARC report, we have a classification of civil societies, like we have registered societies, we have charitable organizations, we have trusts जो इंडिया में काम कर रहे हैं, cooperative societies like अमूल, we have bodies with formal organizational structure, गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज बनाई है फॉर द थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोकल स्टेक होल्डर्स है, प्रेशर ग्रुप्स है, एसएचजीज है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं हमारे पास. हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बट हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें छोड़ दे जो इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे एनजीओज पढ़ना जरूरी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ना जरूरी नहीं है, उनके जस्ट हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. वहीं पे स्टूडेंट एसोसिएशन पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रेशर ग्रुप्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप से क्लियर कट क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द वॉलंटरी सेक्टर. एंड इंडिया में if I tell you the role of this civil society and social sector, these organizations have been helping India's developmental prospect in education sector, as an agitator for public cause, to raise the awareness among citizens. If any of you want to write down things, you can, because बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने का. ठीक है, these organizations act as watchdogs and they vigilantly monitor and expose violations of human rights. जैसा अभी एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन रेज किया था सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर, बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो इस सेक्स ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग को रोकते हैं. दिल्ली में, बिहार में, यूपी में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो ये काम करते हैं, और पुलिस, वकील, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज सब के साथ मिलके एक एमओयू साइन करके इस क्राइम को रोका जाता है. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग दिस, we need to see that how government of India has been promoting this voluntary sector through its policies. तो हमारी जो national policy है on voluntary sector 2007, this is the ultimate document जो पूरे voluntary sector को control करता है, whether these are NGOs or any other organization. So this voluntary sector policy, this talks about सबसे पहले independence of social capital organizations. This voluntary sector policy was brought in 2007 to ensure commitment in order to promote, empower the autonomous, innovative and efficient voluntary sector. So what this will do is, they will cover policies which will govern private sector. They do not expect profits in return, so they are non-profit organizations. They are self-governing organizations. And what are the objectives of this policy? It will create an enabling environment for these voluntary organizations. It will help to legitimize
and mobilize the requisite financial capital from India and abroad, दोनों चीजें याद रखना, for this voluntary sector। और यही एक सबसे बड़ा इशू है जो आज के न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया गया था। चलो अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इस इशू को। They will also identify, this policy also helps to identify the mechanisms। 4 मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा इस पॉलिसी से रिलेटेड कि इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। It will identify mechanisms to promote the voluntary sector and how the voluntary sector can collaborate with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया सेक्स रैकेट्स को पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं इस सेक्स ट्रैफिकिंग को रोकने में। आई कैन गिव यू अ प्राइम एग्जांपल। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ public private partnership startup last year. He was in Bill and Melinda Gates Foundation, and then he switched to Clinton Global University, and then he began with a sustainable waste management initiative in public to private participation। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पीपीपी मॉडल में उनने स्टार्ट किया था और उन्होंने ही स्टार्ट किया पूरा जो म्युनिसिपल वेस्ट आता है उसको सस्टेनेबली डिकम्पोज करना और उसको साइंटिफिकली ट्रीट करना। ठीक है, एंड देन प्रोड्यूसिंग दी बायो कंपोस्ट and ensuring that we can convert the waste to wealth। He was one of my friends, a good friend of mine। Further, we need to also understand that the policy basically talks about encouraging the voluntary organizations and making accountable governance। ये एनजीओज कुछ ऐसा काम करें जिससे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये सारे प्रोविजंस और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किस चीज़ के हैं? एनजीओ के। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे फाइनेंशियल कैपिटल इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होना चाहिए, चाहे वो इंडिया से आए कोई डोनेशन या कोई बाहर से आए डोनेशन। ये चीज़ भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, जिसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018-19 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वॉलंटरी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है? बिकॉज नाउ वी आर बिगिनिंग विद द वॉलंटरी सेक्टर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हैं एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, व्हाट आर एनजीओज? दीज आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। These NGOs as defined by World Bank, they are not for profit organizations that pursue activities to relieve, remember the keywords, to relieve suffering, promote interests of poor, protect environment, provide basic services or undertake community development। समझ में आई बात? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, it provides that all the people of India have right to form associations। ठीक है, what kind of associations can we form? Article 19 clause 1 subclause C mentions that we can form associations। Article 43 of our constitution provides that we can promote and allow formation of
cooperatives, and the concurrent list, particularly the charitable institutions. These are mentioned in concurrent list. These are prelims points, डायरेक्टली पूछे जाते हैं prelims में कभी कभी. अभी NGOs क्या क्या काम करते हैं? They advocate for social change, they provide services to communities, they empower communities, they try to advocate and lobby. What do we mean by lobbying? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. आज के न्यूज़पेपर में होम मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आया था. ठीक है, होम मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आया था. चलो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. आज के न्यूज़पेपर में ये बताया गया दैट मोर देन 30,000 एनजीओज जो हमारे कंट्री में है, दे आर रिसीविंग फंड्स. और ये फंड्स क्यों रिसीव कर रहे हैं? ये फंड्स जो है बाहर से आ रहे हैं. या तो ये हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट बढ़ाने के लिए और रिलीजियस कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए ये पैसे भेजे जा रहे हैं. और ये जो एनजीओज हैं, ये एनजीओज आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं. इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंडीशंस जरूरी है वो कंडीशंस ये फुलफिल नहीं करते. अब ये सारी चीजें बताई गई और ये भी बताया गया कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करा जाएगा. एक एनजीओ का अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए अकॉर्डिंग टू एफसीआरए एक्ट, तो 3 साल तक वो दोबारा से उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. और एक बार अगर कोई एनजीओ रजिस्टर हो गया फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 5 साल के लिए. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. जो मैंने यहां पे बोला दैट दे एडवोकेट, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी. जो हम कल तक पॉलिसी मेकिंग पढ़ रहे थे कि पॉलिसी ही बनती है तभी जाके कोई सेक्टर ग्रोथ करता है. इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी, एनवायरमेंटल पॉलिसी बनेगी. आर वी गुड हेयर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? आई गेस आई हर्ड सम वॉइसेस. ओके, गुड. नाउ पॉलिसी बनेगी तो ही पूरा सेक्टर जो है गवर्न होगा उसी पॉलिसी से. व्हाट दीज एनजीओज आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू लॉबी. व्हाट दे आर ट्राइंग टू लॉबी, कि ये एनवायरमेंटल कंसेंसस को बढ़ाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस. मुंबई में लास्ट टाइम, मुंबई में जो जंगल कट रहा था, इंडिया में दिल्ली में जो अरावलीज के पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारे मेजर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए और इन सारे इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए जितने भी एनजीओज, एनवायरमेंटल एनजीओज होते हैं, वो आके प्रोटेस्ट करते हैं. बट गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये एक्चुअल में हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस को, हमारे ग्रोथ के प्रोसेस को रोक रहे हैं, क्योंकि ये एनजीओज बाहर के हैं, इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है. और क्यों आ रही है? लास्ट टाइम 2015 में, 16 में, मैंने कल भी बोला था, ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बोला गया दैट 1 लाख एनजीओज हमारे पास ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल ही नहीं करते, इवन दो उनका पैसा बाहर से आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कहां से आ रहा है पैसा. इसीलिए हमने एक एक्ट लाया है एनजीओज को रेगुलेट करने के लिए. ये एनजीओज क्या काम करते हैं? दे ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दे ट्राई टू ब्रिंग इन सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, दे ब्रिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, दे होल्ड द डोनर्स अकाउंटेबल फॉर द कम्युनिटीज, दे सर्व द कम्युनिटीज. तो एनजीओज का काम तो अच्छा है, बट कहीं कहीं पे इस ऑर्गेनाइजेशन का गलत फायदा उठा के इधर गवर्नमेंट इनको क्रिटिसाइज करती है और इस एक ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके बाकी सारी कंट्रीज हमारे यहां लॉबी करके हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं कभी कभी.
So these are two things, one is positive, another is negative. ठीक है. What types of NGOs we have? For example, some NGOs work for humanitarian relief. Like कहीं पे कोई डिजास्टर हुआ, सुनामी आई, अभी टाइफून यागी आया था, कोई साइक्लोन आ गया, उड़ीसा के कोस्ट पे साइक्लोन आ गया. तो ये साइक्लोन्स जब भी आते हैं, ये डिजास्टर्स, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए. ठीक है. रिसेंटली जोशीमठ सिंक कर रहा था. उसके बाद अभी हमने देखा वायनाड में डिजास्टर हुआ, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, 400 से ज्यादा लोग उस मड के नीचे आ गए, लैंडस्लाइड के नीचे आ गए वायनाड में, केरला में. तो एनजीओज वहां जाके क्या काम करते हैं, इन डिजास्टर से जितने भी लोग इम्पैक्ट में आए होंगे, इस डिजास्टर के इम्पैक्ट में, उनकी हेल्प करते हैं, इमरजेंसी एड लेके आते हैं. सम फोकस ऑन डेवलपमेंट, सम फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कुछ एनजीओज बनते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ दीज एनजीओज? दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दी वेलफेयर स्कीम्स. देखो, just a moment, someone is joining now. Some NGOs, they work on welfare scheme implementation. Some are working in capacity building. Fighting evils like human and animal trafficking. बताओ एनिमल ट्रैफिकिंग की पे कौन सा इंटरनेशनल एनजीओ काम करता है, जल्दी बताओ. सबने पढ़ा होगा. एनिमल ट्रैफिकिंग पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओ है जो काम करता है इस एनिमल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए. दीज एनजीओज वर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. दे फंक्शन इन एरियाज जहां पे गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती, जैसे कास्ट अपलिफ्टमेंट. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. कोविड-19 के टाइम पे एनजीओज ने कितना काम किया. सम प्रोवाइडेड एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज. सम एनजीओज केम अप टू कर्ब दी फेक न्यूज, जैसे फैक्ट चेक यूनिट्स और फेक न्यूज यूनिट्स और ट्रू न्यूज यूनिट्स ऐसे बनाए गए थे. बहुत सारे एनजीओज ने ये चीज बनाई. कुछ लोगों ने इकोनॉमिक रिलीफ लेके आ गए. सम एनजीओ सेट अप कैंप्स टू प्रोवाइड राशन फॉर द माइग्रेंट्स. सम एनजीओ डिस्ट्रीब्यूटेड पीपीई किट्स. ठीक है. एंड अदर्स, दे deputed their volunteers as medical helpers to curb the quarantine areas and hotspots. Impact of NGOs can be studied. जैसे एक हमारे पास एनजीओ है जिसका नाम है केरला शास्त्र साहित्य परिषद. ये जो एनजीओ है, ये एक मैसिव एनजीओ है और पूरे केरला के स्टेट का 100% जो एजुकेशन है, 100% लिटरेसी रेट, उसमें इस एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है. एंड दिस एनजीओ इज द ओनली एनजीओ विच इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर 100% लिटरेसी रेट ऑफ केरला. एक एनजीओ है हमारे पास युवा एंड स्पार्क. These NGOs are working in Mumbai. ठीक है. And what they are working in? They try to protest the demolition of huts. Of slum dwellers.
we have an NGO Vedanta which fought the famous case जिसका नाम था POSCO case, and this case was for what? To protect the rights of indigenous people. ठीक है, एंड इसी केस में जिसका नाम है वेदांता वर्सेस पॉस्को केस, इसी केस में लास्ट में हमारे पास एक ऐसा जजमेंट आता है जिसकी बेसिस पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आता है और कैंपा एक्ट आता है। ठीक है, NGOs have been fighting for disaster resilience also. The Center for Science and Environment has been a leading voice on pollution. ये भी एक NGO है। ये pollution and toxicity और toxins in food, इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है। We have an NGO named Aid India which works for welfare of people who were affected by COVID-19. We have an NGO which raised the large scale movement of बचपन बचाओ आंदोलन, और इसी बचपन बचाओ आंदोलन ने चाइल्ड राइट्स के ऊपर बहुत बड़ा फाइट किया और 90,000 चिल्ड्रंस जो इंडिया से ट्रैफिक किए जा रहे थे फॉर लेबर, स्लेवरी एंड अदर पर्पसेस, 90,000 चिल्ड्रंस को बचाया इसने, जो अदरवाइज ट्रैफिक किए जा रहे थे। इस एनजीओ ने बचाया, बचपन बचाओ आंदोलन। वी हैव एनजीओज लाइक गुड वीव इंटरनेशनल. This is a network of non-profit organizations which try to end the child labor in rug making industry. जो rugs बनते हैं ना, rugs, कारपेट्स बनते हैं जो आप अपने घरों में बिछाते हो, वो rugs की एक इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पे चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, दिस गुड वीव इंटरनेशनल एनजीओ this is working to stop this child labor in this industry. समझ में आई बात? इतने सारे एनजीओज का एग्जाम्पल आपको याद रखना है और यही है जो आप इस सेशन से लेके जा रहे हो। What are the main challenges which are faced by the NGOs or some NGOs who worked in COVID-19? COVID-19 के टाइम पे कुछ NGOs हमारे पास थे, जैसे सलाम, बॉम्बे फाउंडेशन. This engaged with slum childrens. इसने स्लम चिल्ड्रन में क्या काम किया? उनको मेंटली और इमोशनली एम्पावर किया. There was a organization named Perro Ayuda Welfare Foundation which was working for stray animals. नोट्स बना रहे हो साथ साथ में? नोट्स नहीं बनाओगे तो फायदा नहीं है ये लेक्चर्स करने का, फिर दोबारा से जाके लेक्चर करने पड़ेंगे कहीं और यहाँ पे नोट्स बना लिए तो दोबारा लेक्चर देखना भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है, बस यही नोट्स पढ़ने हैं। फाइनल है ये बात, ये कल ही जुनैद सर ने बोली थी आपको, जे सर ने, कि यहाँ पे करने के बाद आपको दोबारा कहीं नहीं करना है गवर्नेंस, ये तो गारंटीड बात है। ठीक है, तो दिस इज हाउ एनजीओज आर वर्किंग, बट एनजीओज आर फेसिंग चैलेंजेस ऑल्सो। अच्छा, अभी मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं। देयर वॉज अ केस ऑफ ऑल इंडिया स्ट्रे डॉग्स एसोसिएशन।
इस केस का जजमेंट अभी अगस्त के महीने में आया और इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ बोला कि आप स्ट्रे डॉग्स को, अगर किसी एरिया में स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उनकी कलिंग नहीं कर सकते, आप उनको डायरेक्ट मार नहीं सकते हो। गलत है, ये इनह्यूमन तरीका है। और हर एक सिटीजन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स का केयर करे, इनको खाना दे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये हमारे साथ ही रहे हैं जनरेशन से जनरेशन, सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशन, हमेशा ये डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे साथ ही थे। आज स्ट्रे डॉग्स बन रहे हैं ये, अदरवाइज तो डोमेस्टिक डॉग्स थे, है ना, ये तो डोमेस्टिकेटेड थे। दिस case and this judgment also came, why? Because of the NGOs only. There is one more case which was on the Great Indian Bustard, और इसका basically जहां से ये फ्लाई करता है, flyways. Supreme Court in this case in the month of September only mentioned कि अगर आपको just transition करना है, कि आपको क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है, आप एटलीस्ट क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हो तो हो जाओ, बट ये बर्ड्स के फ्लाईवेज को हैम्पर मत करो, आप इनके हैबिटाट को हैम्पर मत करो। दिस केस वॉज ऑल्सो फॉट बाय एन एनजीओ ओनली, दैट इज हाउ द एनजीओज आर वर्किंग इन इंडिया, बट दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस। जैसे आज की डेट में मैंने आपको बोला, आज ही की ये लेटर है, होम मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट आया है आज कि एनजीओ जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनकी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करने वाले हैं, बिकॉज जो वो फंड्स ले रहे हैं वो रिलीजियस कन्वर्जन में यूज हो रहे हैं। और उन्होंने एक लिस्ट इशू की है जिसमें 17 रीजंस दिए गए हैं, 17 ऐसी कंडीशंस मेंशन की गई है कि उन कंडीशंस के ऊपर किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, सो चैलेंजेस लाइक, सीबीआई ने ऐसा बोला लास्ट टाइम दैट देयर इज वन एनजीओ पर 600 इंडियन पीपल, इतने हमारे यहाँ एनजीओज है, हर 600 लोग इंडिया में एक एनजीओ बनाए हुए हैं, एंड हमें पता ही नहीं है कौन एनजीओ क्या काम करता है। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कहां से इसके फंड्स आ रहे हैं, कहां से कलेक्ट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। सबसे इजीएस्ट वे है, आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप उठ के ऑनलाइन तुरंत रजिस्टर कर लिया एनजीओ, खत्म कहानी। रजिस्टर तो कर लिए, उसके बाद पता ही नहीं क्या काम कर रहा है, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है प्रॉपर, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है। एंड ओनली 10%, दिस टू इज मेंशन्ड बाय सीबीआई ओनली, that only 10% of NGOs in India file their income tax returns और file their income and expenditure statements, that उनकी इनकम कितनी हुई और उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ। बेसिकली इस रूट को यूज किया जाता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में। Thousands of these NGOs are receiving government aid, but still there is no result coming out of those NGOs. In a study, I already mentioned this thing that Intelligence Bureau said कि जितने भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं विच आर वर्किंग फॉर एंटी न्यूक्लियर, एंटी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन व्हाट? एंटी न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी कोल, एंटी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, एंटी जीएमओज, और ये सारे एनजीओज जो हैं जो इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, दे आर फंडेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स। किस लिए इनको फंड किया जाता है? वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इनको क्यों पैसा दे रही है इन एनजीओज को जो इंडिया में काम कर रहे हैं? ताकि इंडिया का जो डेवलपमेंटल प्रोसीड है, चाहे हम न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करना चाहते हो, चाहे हम कोल को यूटिलाइज करना चाहते हो, या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स डेवलप करना चाहते हो, इन सब डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स को रोकना चाहते हैं ये लोग।
और इनकी वजह से, अब सबसे मजेदार फैक्ट ये है कि इनकी फंक्शनिंग की वजह से इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, और इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज रिड्यूसिंग बाय 2 to 3%। अदरवाइज अगर आज की हमारी जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शन 6.8% और 6.9% है, this could otherwise have been 9%. That is what Intelligence Bureau is saying. There is massive corruption and misuse of funds in these NGOs. These NGOs lack personally trained or professionally trained personnel. They lack volunteerism. They have severe lack of funds also. The government does not have 100% grants in assistance and delays. There are delays in grants also by government. Therefore, these NGOs do lack funds also sometimes, but the NGOs who are funded by foreign governments or who get funds, they do not file in income and expenditure receipts. These are the challenges with respect to NGOs. Government of India took steps to regulate this sector of NGOs. Therefore, Ministry of Home Affairs के अंदर आते हैं ये सारे NGOs, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है मॉनिटर करती है फॉरेन फंड्स को। नॉट सारे एनजीओज इसके अंदर नहीं आते, पहले ये चीज समझो, दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल करती है फॉरेन फंडिंग को, जो एनजीओज में फॉरेन फंडिंग आती है उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रपोजल दिया फॉर द एक्ट नेम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एनजीओज को रजिस्टर किया जाता है, कुछ एनजीओज को रजिस्टर किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, और कुछ को रजिस्टर किया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। एंड रिसेंटली न्यू एक्रीडेशन गाइडलाइंस हैव बीन केम, और वो भी हम पढ़ने वाले हैं विजय कुमार कमेटी के ऊपर। विजय कुमार कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी फॉर न्यू एक्रीडेशंस टू द एनजीओज, और इनको कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एनजीओज को, तो इसके ऊपर, इस सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर विजय कुमार कमेटी आई थी। वो कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे वो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। नीति आयोग, इंडिया में नेशनल लेवल पे नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी, जहां पे आप एनजीओ को रजिस्टर करोगे, एंड this is the agency which provides accreditation of NGOs from the government। क्लियर कट समझ में आई चीजें? 3 से 4 स्टेप्स मैंने यहां पे बोला, FCRA, फेमा, विजय कुमार कमेटी एंड नीति आयोग। 4 पॉइंट्स मैंने यहां पे बोले बस। मेजर इश्यूज की बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो एनजीओज को लेके है, दैट इज दिस FCRA एक्ट। FCRA एक्ट 2010 में आया था, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला दैट दिस एक्ट इज वैलिड, एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। और इसी का नहीं, वैलिडिटी ऑफ द FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2022, ठीक है। Also, Ministry of Home Affairs separately issued rules, जिनको हम बोलते हैं FCRA rules, in 2022। अभी मजे की बात यह है कि ये जो रूल्स और ये एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जिसकी वजह से एनजीओज का काम करना बहुत मुश्किल हो गया, और इसके बाद बहुत सारे एनजीओ जो है रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिए, ठीक है, फॉरेन फंड्स के लिए। क्यों ऐसा हुआ और ये रूल्स क्या बोलते हैं हमें? 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। FCRA अमेंडमेंट रूल्स 2022 से रिलेटेड 4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं? These rules allow Indians to receive rupees 10 lakhs annually from relatives abroad,
अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर रह रहा है और वो आपको पैसे भेज रहा है तो वो बस 10 लाख रुपए भेज सकता है आपको, अगर वो रिलेटिव है, अंडर FCRA रूल्स. Yes, there is someone who has raised the hand. Please. You can ask if you want to ask anything. There is a student named Ara Badgam. If you want to ask anything, you can ask and you can lower your hand. ठीक है. These FCRA rules, पहला कंडीशन 10 लाख रुपए एनुअली अंडर FCRA. Individuals would have 90 days to inform government if the limit has crossed. अगर ये 10 लाख रुपए की लिमिट ज्यादा हो गई है तो 90 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मेरे पास 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा बाहर से आया हुआ है. तब गवर्नमेंट आपको इंस्पेक्ट करेगी कि क्यों आया है, कहां यूज हुआ है, किसने भेजा है. प्लस द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन to receive foreign funds is 45 days. Plus, there is a list of 12 items which are known as compoundable offenses. ये 12 आइटम्स और 12 ऐसी कंडीशंस है जिनके अंदर आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते हो, वेदर यू आर एन इंडिविजुअल और एन NGO. ठीक है, समझ में आई. ये कंडीशंस कुछ ऐसी कंडीशंस है कि अगर किसी भी इंसान के पास फंड्स आ गए बाहर से, ये NGO है, सबसे पहले तो ये काम कर रहा है वॉलंटरी बेसिस पे, प्रॉफिट ये कमाता नहीं है. ठीक है, उसके ऊपर आप इस पे इतनी सारी कंडीशंस लगा रहे हो तो ये काम कहां से करेगा. समझ में आई बात. क्योंकि इसको हर एक बात के ऊपर ब्यूरोक्रेसी में किसी न किसी इंसान से परमिशन लेना है, कहीं ना कहीं से इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को पास करवाना है, तो इन लोगों को भी करप्शन देना पड़ेगा. तो दीज आर द इश्यूज जिसकी वजह से अब ये NGOs काम नहीं कर सकते. करते तो हैं बट ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जरूरी भी था, क्योंकि यहां से जो पैसा आ रहा था वो बहुत ही इलीगल कामों में यूज हो रहा था. ये जो पैसा आ रहा था ये पैसा इलीगल कामों में यूज हो रहा था. या तो हवाला का पैसा था, या तो करप्शन का पैसा था, या तो ब्लैक को व्हाइट करने के लिए पैसा था, या तो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद ही अपनी NGOs खोल के रखे थे कि ये हमारा NGO है, हमारी पॉलिटिकल फंडिंग ऐसे राउट होगी इसमें से. देयरफॉर जो फॉरेन से फंडिंग आ रही थी वो फंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ की डेवलपमेंटल प्रोसेस को हैम्पर करने के लिए आती थी, इसीलिए ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए. ठीक है, 2020 के इस अमेंडमेंट के बाद NGOs have been barred from taking funds. NGO आज की डेट में पैसे नहीं ले सकते हैं. किस चीज के लिए? पहला, इलेक्शन कैंडिडेट्स, जो भी इलेक्शन में उतरने वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे पैसा नहीं ले सकते. न्यूज़पेपर के एडिटर्स, इनसे पैसा नहीं ले सकते. पब्लिशर्स से पैसा नहीं ले सकते. जो जजेस होंगे उनसे पैसा नहीं ले सकते. गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से पैसा नहीं ले सकते. इट इज इलीगल टू पास इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू समवन एल्स. अगर आपने फॉरेन से फंडिंग ली और आपको वो फंडिंग किसी पर्पस के लिए आई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. कोई एक NGO है जो इंडिया में ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर काम कर रहा है और इसने बोला मैंने 1 करोड़ रुपए अमेरिका से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दे दिया. फॉर एग्जांपल मैकडी है जो हमारे यहाँ काम करती है. मैकडी का प्रॉफिट बहुत सारा है और मैकडी जो है CSR में फंड लगाना चाहती है, CSR में पैसा देना चाहती है, तो इसने एक NGO को पैसा दे दिया. कितना पैसा दिया? 1 करोड़ रुपए. अब हमें समझ में आ गया कि ये 1 करोड़ रुपए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी NGO को दिए इंडिया में, किस लिए? ड्रग डी एडिक्शन के लिए.
तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एनजीओ जो है ये पैसा खुद ही खर्च करेगा, पहली चीज़, ये किसी को पास नहीं करेगा ये पैसा। दूसरा, जितना भी पैसा आया उसका जस्ट ओनली 20% this NGO will utilize only 20% for its administrative purposes. एनजीओ चलाने के लिए 20% यूज कर सकता है, 80% इसको यूज करना पड़ेगा और उसके रिसीट्स, वो पेमेंट्स और उसका एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा। 80% of the funds has to go to the cause of that particular funding. अदरवाइज ये फंडिंग इलीगल करार दी जाएगी और इस एनजीओ को बैन कर दिया जाएगा। केवाईसी नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट कराया गया और आधार कार्ड, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड सब लिया गया इन एनजीओ से। एफसीआरए अकाउंट, ये एक और प्रोविजन है, बहुत ही बड़ा खतरनाक प्रोविजन बनाया गया एक, कि एफसीआरए अकाउंट, जिस अकाउंट में आपका पैसा आएगा बाहर से, जिस अकाउंट में फंडिंग आएगी, वो अकाउंट एसबीआई की दिल्ली की ब्रांच में ही होगा। दूसरा इंडिया में किसी भी ब्रांच में नहीं हो सकता। आपको एसबीआई के दिल्ली की ब्रांच में ही पैसा सबमिट करना होगा, जमा कराना होगा। आपने वहां अकाउंट खोलना है, चाहे आप एनजीओ केरला में चला रहे हो या अंडमान में चला रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने दिल्ली की ब्रांच में अकाउंट खोलना है, वहीं पे पैसा आएगा आपका। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एनजीओ से रिलेटेड पता होने चाहिए। वे फॉरवर्ड और द चैलेंजेस, like what we can suggest at last if a question comes on NGOs। विजय कुमार कमेटी के recommendations, इसकी recommendations में सबसे अच्छी 2 recommendations है। that the details of NGO should be available as searchable database information। कि कोई भी एनजीओ अगर इंडिया में खुल रहा है और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस एक एनजीओ है, तो आपने गूगल पे ग्रीन पीस डाल दिया तो ग्रीन पीस की जितनी भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके सामने आ सकती है। इट शुड बी सर्चेबल डेटाबेस इंफॉर्मेशन। सेकंड, विजय कुमार कमिटी सेज दैट देयर शुड बी अ नोडल बॉडी which should oversee the interface between NGOs and government। Therefore, Vijay Kumar Committee recommended नीति आयोग के पास ऐसे पावर्स होने चाहिए और इनको ऐसे पावर्स देने चाहिए जो एक्ट करे एज अ नोडल बॉडी बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनजीओज। सेकंड एआरसी रिपोर्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दी गई एनजीओज के लिए, एंड ये बोला गया दैट पावर्स अंडर एफसीआरए should be decentralized and delegated to state governments और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स नहीं रहने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डेलीगेट करो और इनकी जो इंप्लीमेंटेशन है, एफसीआरए के रूल्स की इंप्लीमेंटेशन है, उसको थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाओ और इफेक्टिव बनाओ। ठीक है, एनजीओ शुड बी प्रोवाइडेड विद रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू represent themselves for foreign funding। There should be use of technology to detect and implement ease of compliance in receiving the foreign funding। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दर्पण पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, और इस दर्पण पोर्टल को एनलार्ज किया जा सकता है और इसमें एनजीओज को भी अलाउ किया जा सकता है, दैट एनजीओज कैन आल्सो बी अलाउड टू हैव अ पार्ट फॉर ईज ऑफ कंप्लायंस ऑफ देयर फाइलिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट्स थ्रू दिस दर्पण पोर्टल, ताकि उनके लिए इजी हो जाए अपना हिसाब जमा करना गवर्नमेंट के पास। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब मुझे ये बताओ, अभी पढ़ना है या कल पढ़ोगे या 10:30 तक बैठने की हिम्मत है?
कल कल नहीं हो पाएगा। टुमारो, शबीना इज सेइंग टुमारो, जानब इज सेइंग टुमारो, एनीवन? बताइए, टुमारो? देखो कल के लिए हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बच जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और हमारे पास बचेगा गुड गवर्नेंस, हमारे पास बचेगा ई गवर्नेंस। हाँ, इतना हम कल कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट जो इसके बाद बचेगा उसको फिर परसू कर लेंगे, एंड देन वी आर डन विद द गवर्नेंस। कोऑपरेटिव्स बचे हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या किया जाए अभी? लेट्स कॉल इट अ डे, है ना। कम प्रिपेयर टुमारो, थोड़ा एक्स्ट्रा खींचेंगे कल। थैंक यू वंस अगेन। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो रुक सकता है, अदरवाइज अदर पीपल कैन लीव द ग्रुप, द मीट। किसी को बात करनी हो तो वो रुक सकता है। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक।